Good morning, students. Today we're gonna start the third chapter, that is the Midnight's Visitor. Now here there are three main characters. Main characters are three. One is Possible, second is Fowler, and third is Max. Now what happened? The story starts that Fowler who is a writer, who just want to write something more about the detectives, want to write something thrilling and all. So he just made a mind. एक उसने माइंड बनाया दैट ही जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विद ऑसिबल हु वाज अ वेरी फेमस डिटेक्टिव. ऑसिबल जो कि एक डिटेक्टिव है, उसके साथ वो अपना एक टाइम स्पेंड करेगा, सो दैट व्हाट विल हैपन, ही विल गेट द आइडियाज टू मोर टू राइट. So he just called Possible and take the appointment. Possible ने भी उसको अपॉइंटमेंट दिया and he called him to the hotel where he stayed right now. In the hotel he was staying in the 6th floor. So वो नीचे आया and they met. So before that, just before they met, usually when we are thinking about or when we are talking about any of the spy or any of the secret agent, जब हम secret agent या spy की बात करते हैं, the impression comes for the agent is very smart, dashing. वो जेम्स बॉन्ड वाला उसका एक पिक्चर होगा, है ना, वेरी स्मार्ट, वेरी हेल्दी, है ना, और बहुत एक्टिव होगा. दिस सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन यूजुअली ऑल वी आर हैविंग. और इसीलिए फॉलर का भी एक इमेजिनेशन था कि whenever he gonna meet with this agent he will also very smart and dashing, और बहुत एक वेपन होगा उसके पास, एक पिस्टल होगी उसके पास, और such like that. But on the contrary, what happened, when he came and meet with Possible, he find it out a fat person, a clumsy person, and it makes him disappointed. So Possible से वो जैसे ही मिला वो डिसअपॉइंट हो गया. रीज़न भी कि उसकी एक इमेजिनेशन थी कि सीक्रेट एजेंट ऐसे दिखते होंगे, बट उसका बिल्कुल उल्टा हुआ. ऑल द थिंग्स आर बिकम ऑपोजिट ऑफ इट. उसकी थिंकिंग का बिल्कुल अपोजिट हुआ. सो दिस थिंग मेक हिम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, जो उसने अपनी बातों में भी जाहिर किया व्हेन ही मेट विद Possible. जब वो Possible से मिला उसने अपनी चीज़ों को भी जाहिर किया, बिकॉज Possible एक इंटेलिजेंट था, है ना, ही वॉज अ स्पाई, सीक्रेट एजेंट था. तो डेफिनेटली उसको भी समझ में आ गया दैट बिकॉज ऑफ हिज लुक ही इज दिस फॉलोअर इज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड. एनी हाउ उसने कहा चलो अब हम कमरे में चलते हैं. सो वेन दे वेंट टू हिज रूम, जब वो अपने कमरे में गया, नाउ वेयर हिज रूम इज 6th floor. Why I am stressing out some points, because this is important for just jotted down your answers. So जब वो 6th floor में जहाँ पर उसका कमरा था, they opened the door, they find it out one more man was standing inside pointing the gun towards Possible. So this is the first incident which gives थ्रिलिंग टू फॉलो. ये थोड़ा सा एक उसके लिए थ्रिलिंग था, एडवेंचरियस था, कि जैसे ही दरवाज़ा खोला एक स्मार्ट सा एक डैशिंग सा आदमी बंदूक लेके और खड़ा हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट थ्रिलिंग थिंग इंसिडेंट विच वॉज देयर विथ फॉलर के लिए ये बहुत थ्रिलिंग था. सो एनी हाउ दे एंटर्ड ओवर देयर एंड देन Possible ने पूछा हु आर यू, तो उसने बोला आई एम मैक्स, मैं मैक्स हूँ, एंड द सीक्रेट पेपर व्हाट यू आर सपोज टू रिसीव यू जस्ट गिव इट टू मी, आई गोना टेक इट आउट. Possible ने बोला ओके फाइन. देयर वॉज एन आर्म चेयर, वहाँ पर एक आर्म चेयर था, एंड ही सेट ओवर देयर बिकॉज ही वॉज फैट एंड क्लमजी, तो वो ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता था. ही जस्ट सेट ओवर देयर, वो बैठ गया. Fowler was thinking किसके साथ I just come and have a just spending the time over there. इससे अच्छा तो ये दूसरा वाला एजेंट है, looking like a spy, looking like a genius also. So anyhow he was just thinking all of these. So meanwhile what happened, Possible जो था वो आराम से अपने आर्म चेयर पे बैठा and he was telling him कि अच्छा तुम भी balcony से ही आए होंगे, you also come from the balcony only. Reason being because just few days before only what happened to me that one more man came from the balcony. Now एक और आदमी balcony से ही मेरे कमरे में आ गया था. Now he is going to give the reason of it. He will just narrate a story that giving the explanation कि ये जो कमरा था it was little bit big and now the hotel management they segregate the rooms and they have a common balcony. So common balcony की वजह से कोई भी दूसरे कमरे से यहाँ पर आ रहा है. This he told and Max was also listening to it. Okay,
Now what happened, just after a few couple of times only, or just after later little bit time, someone just knocking the door. When they are knocking the door, all of sudden what happened, Max was there कि who is it. तो ऑसिबल ने कहा एक्चुअली आई एम टू रिसीव सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सो आई जस्ट कॉल्ड पुलिस टू कम एंड सी वेदर आई एम ओके और नॉट. मैंने पुलिस को कहा है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आके ये चेक करे वेदर आई एम फाइन और नॉट. सो मैक्स ने सोचा कि हाँ हो सकता है, बिकॉज दैट पेपर्स वर वेरी सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इट इज़. सो आफ्टर जब तक वो सोचेगा, उसके उस वक्त क्या हुआ, जो दरवाज़ा था, द पर्सन इज बैंगिंग, दे स्टार्टेड बैंगिंग द डोर. बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लग गए दरवाज़ा. सो मैक्स वॉज क्वाइट श्योर अबाउट इट, डेफिनेटली इट्स पुलिस ओनली. सो व्हाट हैपन, उसने पॉइंटेड किया गन को वापस ऑसिबल की तरफ ही, एंड ही सेड दैट आई एम वेटिंग. तभी उसको याद आया दैट जस्ट नाउ ओनली ऑसिबल टोल्ड हिम कि यहाँ पर एक बालकोनी है, फ्रॉम देयर ही गोना हाइड हिमसेल्फ. वो अपने आप को वहाँ पर छुपा लेगा एंड अगेन कम एंड टेक द पेपर्स एंड देन गेट आउट ऑफ दैट वे ओनली. उसने ऑसिबल को कहा कि ओके फाइन, यू जस्ट मेक श्योर अबाउट इट दैट पुलिस विल नॉट एंटर इनटू द रूम. वहीं से उनको बाहर से ही विदा कर दो. ऑसिबल ने बोला ओके फाइन. नाउ व्हाट हैपन कि जैसे ही वो छुपने लगा, मैक्स पीछे की तरफ जाने लगा, पॉइंटिंग द गन टूवर्ड्स ऑसिबल. वो पीछे जाता गया. उसने तो यही सोचा, कर्टन को हटाया और उसने सोचा बालकोनी है, बट अचानक से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई जैसे उसने बालकोनी में पैर रखा. नाउ पैर रखा और वो चीखा. नाउ व्हाट हैपन कि इधर ऑसिबल ने दरवाज़ा खोला. देयर वाज अ वेटर ओनली हु वाज टेकिंग द ग्लास एंड द बॉटल एंड जस्ट प्लेस इट ऑन द टेबल एंड वेंट ऑफ. ये सारी चीज़ें फॉलर देख रहा था. फॉलर इज़ अ राइटर हु इज़ अ वेरी डीप थिंकर. यूजुअली भी राइटर्स जो होते हैं वो बहुत डीप थिंकर होते हैं. व्हेन ही आस्क्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट ऑसिबल, तो जब उसने ऑसिबल से ये सारी चीज़ें पूछी, तब ऑसिबल ने कहा दैट एग्जैक्टली देयर इज़ नो बालकोनी, हम 6th फ्लोर से पर हैं. और जैसे उसने पर्दा हटा के अपना पैर उधर किया होगा, ही फॉलन डाउन, वो नीचे गिर गया मैक्स. तो मैक्स विल डेफिनेटली डाई. और मैंने कोई पुलिस को फ़ोन ही नहीं किया था. आई जस्ट ऑर्डर द ड्रिंक विच दिस वेटर ब्रिंग इट. देन ओनली फॉलर अंडरस्टूड दिस थिंग कि चाहे वो क्लमजी दिखे, चाहे वो फैट दिखे, चाहे वो कैसा भी दिखे, बट ही इज़ हैविंग अ वेरी शार्प माइंड. तो यहाँ पर आपकी स्टोरी खत्म होती है. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर. दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन इवन यूज इट इन योर आंसर्स, फ्रेमिंग द आंसर्स. कि हम बाहर से ही देख के, किसी भी चीज़ को बाहर से देख के हम एनालिसिस ना करें. अनलेस वी थिंक अबाउट इट, वी फील अबाउट इट, वी स्टडी अबाउट इट. पहले आप उस चीज़ को समझिए, जानिए, उसको फील कीजिए, एंड देन ओनली यू मेक योर माइंड की एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो हियर योर स्टोरी गेट्स एंड्स. थैंक यू.